السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد پہلا بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے سنتاس معاہدے کے تحت رابطہ کر کے ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے تویم میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیش کی اطلاع دی گئی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی ہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے طلباء کو جدید طبی علاج اور مصنوعی اعضاء فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدے اور متعدد ایم او یوز پر دستخط بھی کیے گئے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ویزا پالیسی میں نرمی، فضائی رابطوں کی بحالی اور عوامی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اہم ملاقات۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور بیگم خالدہ ضیاء کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن ہیں۔ ملاقات میں خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات بیجنگ میں ہوئی، جس میں پاک چین تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی قیادت کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج انسدادی دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور ترقی کی راہ پر دونوں ممالک ایک ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے غیر یقینی حالات میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں اور دونوں ممالک نے ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کے علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ پر بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور عالمی امور میں پاکستان کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 14 افراد جان کی بازی ہار گئے، 62 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں، بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ مردان میں بارش کے دوران چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے، جبکہ لوئر دیر میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جان سے گئے۔ لکی مروت میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ ادھر بٹگرام اور مانسیرا کے ولائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکیں متاثر، جبکہ ناران کاغان میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کاغان بند ہو گئی ہے۔ بالاکوٹ سے 200 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حویلیہ میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بائی پاس روڈ بند، مقامی آبادی اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کا بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 15 اگست سے اب تک بارشوں سے 406 افراد جاں بحق اور 247 زخمی ہو چکے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक शहरी दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी चश्मों के करीब कयाम से गुरेज करें और इनसे कम अज़ कम 20 फीट दूर रहें। मौजूदा सीजन में स्विमिंग से परहेज करें और सैलाबी रेलों के करीब गाड़ी चलाने या उन्हें क्रॉस करने की कोशिश न करें। शुमारी इलाकों का सफ़र करने से कबल सड़कों और रास्तों की सूरत हाल जांचें और ज़रूरी बुनियादी सामान जैसे पानी, खुश्क राशन, टॉर्च और इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमरा रखें। शहरियों से कहा गया है कि मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट्स पर नजर रखें और महकमा सयाहत और PDMA की हिदायत पर भी अमल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें ज़मीनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर ऐलान किया गया है। पार्टी ने PP हसी खानेवाल से मुनज़्ज़ा फातिमा और NH असर वज़ीराबाद से N अहमद को टिकट जारी कर दिया है। जबकि दीगर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबल फराज के कानूनी ऑप्शन मुकम्मल होने तक नए कैदी हिस्ब इख्तलाफ की तकर्री मौखर कर दी गई है। ताहम मुतबादल नामों पर महमूद खान चकजई और आज़म स्वाति शामिल हैं। इजलास में बानी PTI के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों अलीमा खानम के बेटों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज, मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत भी की गई। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रिवाज भुट्टो की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। बानी PTI और इनकी अहलिया को शदीद जहनी दबाव में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी बुशरा बीबी को अखबार, खबरें या कोई मालूमात तक नहीं दी जा रही है। रावलपिंडी POL की ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन से ऑयल चोरी पकड़ी गई है। मुलजमान ने डंपर के नीचे टैंकर बनाकर ऊपर बजरी डाल रखी थी। मेन ऑयल पाइपलाइन से ऑयल चोरी करने के दौरान आग लगी, जिसके बायस पाइपलाइन से ऑयल चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। घर से सुरंग लगाकर ऑयल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। मुलजमान के खिलाफ थाना धमियाल में खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। PDM दौरे हुकूमत में वजारत मवासलात में अरबों के घपले, पाकिस्तान पोस्ट में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने वजारत मवासलात की बेज़ाब्तियों का पोल भी खोल दिया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 15 तक गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 21 करोड़ से ज़ायद का टीका लगाया गया और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों का इश्तिहार जुलाई 2022 में जारी हुआ। 120 दिनों में भर्तियों की हिदायत की गई, लेकिन भर्तियाँ अगस्त 2023 तक जारी रहीं। हालिया असामियों से ज़ायद भर्तियाँ और कोटा कायद की खिलाफ वर्जी की गई। वजारत मवासलात ने भर्तियों में बेकायदगियों का इतराफ़ कर लिया है। तहकीकाती कमेटियाँ भी कायम कर दी गई हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला, तमाम अथॉरिटीज़ में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और प्रोजेक्ट बेस्ड भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भर्तियों के लिए महकमा सेहत से पेश की मंजूरी लाजमी करार दे दी गई है। मुरासले के मुताबिक हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला कर दिया गया है। तमाम अथॉरिटीज़ में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और प्रोजेक्ट बेस्ड भर्तियाँ भी कर दी गई हैं। भर्तियों के लिए महकमा सेहत से पेश की मंजूरी लाजमी करार दे दी गई है और हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़रिए तमाम एक शानदार और पुरवकार मीट एंड ग्रीट तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें पाकिस्तान के मुमताज़ मालिज और इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान के एजाज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मेलबर्न से देखते हैं सलमान रहमान की रिपोर्ट। शरका ने डॉक्टर बारी की इस जद्दोजहद को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा और कहा कि उनकी कहानी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र और नौजवान नस्ल के लिए मिशल राह है। तकरीब में कई मुखिर अफराद ने इदारे के जारी मनसूबों के लिए माली ताउन देने का ऐलान किया ताकि ये खिदमत का सिलसिला मजीद आगे बढ़ सके। डॉक्टर बारी ने कहा कि महदूद वसाइल से शुरू होने वाला ये सफ़र आज कम्युनिटी के एतमाद और ताउन से पाकिस्तान का एक बड़ा हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। सबसे ज्यादा अच्छी ह्यूमन रिसोर्स देना इसका बहुत बड़ा चैलेंज है और वो हम अपनी भी हमने अपने कॉलेज भी बनाए हैं ताकि हम जो लोग तैयार इंडस वही चला सके जिससे कि दिल में दर्द हो, जिसमें पैशन हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में भी है, उन्होंने भी तावन किया कि ये भी आएंगे अपनी टेक्निकली वहाँ पर भी अपना जो काम है उससे भी सपोर्ट करेंगे। हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया के मुंतजमीन ने कम्युनिटी के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की ये यकजहती पाकिस्तान में सेहत की मयारी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। सलमान रहमान, ABN न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि बरतानिया के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अली असगर के पोते और डॉक्टर जाहिद असगर के साहबजादे इस्माइल असगर ने लंदन की मेट्रो यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग रोबोटिक्स में नुमाया पोजीशन हासिल की है। इस कामयाबी की खुशी में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजडेल से इसाक चौधरी की रिपोर्ट। शुरका ने इस्माइल असगर को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि नौजवान नस्ल को जदीद तालीम खुसूसन कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स जैसे शोबों में आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत है। So proud of my son Ismail achieving his degree at the first class honours in systems engineering and artificial intelligence and robotics. It's a great achievement for him and a proud moment for our community. डिग्री है उसने हासिल की है तो मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है और मेरी कम्युनिटी के लिए भी एजाज़ है। मेरा पैगाम है अपने तमाम कश्मीरी पाकिस्तानी हो, इसका एहसास होना चाहिए, वो एजुकेशन का होना चाहिए। शुरका का कहना था कि जदीद टेक्निकल तालीम ही नौजवानों को बेहतर रोजगार, रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की नई राहें फराहम कर सकती है। हमारे बेटे ने कश्मीरी निसाद बरतानवी शहरी जो रुशडल का रहायशी है इस्माइल असगर, उसने मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन से इंजीनियरिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में टॉप किया है। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। शुरका का कहना था कि बरतानवी मुआशरे में पाकिस्तानी नयात नौजवान जदीद टेक्निकल तालीम से अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं और यही इनके रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और इक़्तिदाम में कत्ल का केस कराची की मुकामी अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुलज़मान को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को सिटी कोर्ट कराची में स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। पुलिस की फरहान गनी और दीगर मुलज़मान के राहदारी रिमांड की इस्तदा तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का है। मुलज़मान को पीर के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। मुलज़मान का एक रोज़ा राहदारी रिमांड दिया जाए। यहाँ पे खबर दें कि पाकिस्तान में रबी अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। रोयत हिलाल कमेटी को मुल्क भर के किसी भी हिस्से से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। इसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि मुल्क भर में यकम रबी अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी साहबजादा अबुल खबीर की ज़ेर सदारत हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में किसी भी जगह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रबी अव्वल का पहला दिन 26 अगस्त बरोज़ मंगल जबकि 12 रबी अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।